ओके, राइट डाउन नेक्स्ट. नेक्स्ट इज डायनामिक लोड. स्टैटिक हो गया, सेकंड राइट डाउन डायनामिक. डायनेमिक लोड. डायनेमिक लोड में इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ, इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ changes with respect to time, changes with respect to time, load is called dynamic load. Load is called dynamic load. So dynamic load में अपना दो है, फर्स्ट इज इम्पैक्ट लोड एंड सेकंड इज योर फ्लक्चुएटिंग लोड. तो पहला लिखो इम्पैक्ट लोड. इम्पैक्ट लोड. ओके, सो इम्पैक्ट लोड किस तरीके से लगता है? तो इम्पैक्ट लोड के लिए मान लो कि दिस इज ए बार, this is a bar, okay, and in this bar this portion is like extra portion welded with it, ऐसे ये welded. और इसमें हम क्या करते हैं, we place a collar of huge weight here, we place a collar of huge weight here, ऐसे एक कॉलर है इसमें, कॉलर ऑफ ह्यूज वेट, वेट है इसका W, ऐसे, ओके, वेट है इसका W ऐसे, और इसको हम H हाइट से क्या करते हैं, ड्रॉप कराते हैं. तो जब ये H हाइट से ड्रॉप करेगा, ऐसे गिरेगा, तो यहां जाकर ये इस पे ऐसे स्ट्राइक करेगा, इससे टक्कर मारेगा. सो दैट विल प्रोवाइड द इम्पैक्ट लोड ऑन द बार. इट विल प्रोवाइड the impact load on the bar. Okay, now here when it will hit the bar at the end bottom, तो इसमें कुछ elongation होगा, इसमें कुछ elongation होगा. लेट्स से इसमें elongation हो जाता है यहां तक, it is elongated by this amount, elongated by this amount. This amount will be called your delta impact, deformation due to impact loading. So this will be called delta impact. ये यहां तक इसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, लेट से. क्लियर? सेकेंड केस हम लेते हैं कि सेम बार है, सेम बार सेम बार सेम बार है, और इस बार पर same load W we are applying, but this time this W is applied gradually as gradually applied load. W you are applying as gradually applied load like this. Second case, both bar are same, both bar are same, both the bars have same length, area, Young's modulus like this. Both are same bar. Okay, so first case is of impact loading, second case is of gradually applied loading. So when you will apply gradually applied load, the elongation will be little less. इसमें elongation थोड़ा कम होगा, होगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकली वी नो, अगर किसी को हम एक सडन लोड लगाएं तब उसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है. सडन लोड इज मोर डेंजरस देन द ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. क्लियर हुई बात? सो यहां पर जो पहला केस है सडनली अप्लाइड लोड, इन दैट व्हेन दिस कॉलर विल कम एंड जस्ट टच दिस डिस्क, ये पहले तो इसको जस्ट टच करेगा, ऐसे जस्ट टच होगा, फिर उस कॉलर पर लोड लगना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, और फिर मैक्सिमम होगा. गेटिंग द पॉइंट?
तो वो भी 0 से मैक्सिमम W तक पहुंचेगा. इट विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 0 to W, but it will take very less time. It will take very less time. So what will be the graph here? What will be the graph here? Look, graph will look like same. ग्राफ ऐसा ही होगा. It will take some delta t for 0 to W, but this delta t time will be very small. Now, how to check that this is very small for impact loading or it is small for gradually applied loading? Okay, gradually applied loading. Let's say this weight W is 100 Newton. इसको 100 मान लिया अपन ने. ओके, हमको 100 न्यूटन का लोड अप्लाई करना है. 100 न्यूटन लोड वी हैव टू अप्लाई. So in delta t time it will reach from P minimum equal to 0 to P maximum equal to W, or you can say P equal to 100 Newton. ऐसे पहुंच जाएगा. अब when this collar will hit this disc, ये इस डिस्क पर गिरेगा तो इसमें क्या होगा? वाइब्रेशन होगा लाइक दिस. देयर विल बी वाइब्रेशन लाइक दिस, क्योंकि राइट नाउ वी हैव डिस्कस द स्टिफनेस. तो जस्ट लाइक द स्प्रिंग्स, स्प्रिंग ऐसे ऊपर नीचे जाता है, स्प्रिंग में स्टिफनेस था, सो बार इज ऑल्सो हैविंग स्टिफनेस. assume like it is made up of rubber, so when it will hit here, there will be vibration like this for some time. There will be vibration like this for some time. So this delta t we will compare with the time period of that vibration. So how we will check? We will check by these condition. If delta t is less than time period by 2, delta t is very small, less than time period by 2, then it will be called impact load or sudden load. Okay, now if this delta t will be large, kitna large? Larger than the 3 times of time period, then it will be called gradually applied load. Gradually applied load. ठीक है. Now if delta t is less than 3t and more than t by 2, इसके बीच में है, then it is better to assume impact load for safety. क्या मतलब हुआ इसका? समझो जरा. This delta t we are comparing with the time period, where t is time period of vibration, time period of vibration of the bar. ओके, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन करेगा, उसका टाइम पीरियड ये होगा. क्लियर हुई बात? सो हियर इट इज लेस देन और मोर देन, हियर यू कैन यूज द इक्वालिटी लाइक दिस. बोला कि 3t से ज्यादा अगर टाइम लग रहा है तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, कम टेंशन की जरूरत है. बट इफ डेल्टा टी इज लेस देन t by 2, सर्टेनली इट इज इंपैक्ट लोड. एंड इन बिटवीन इसको ग्रेजुअली अप्लाइड भी ले सकते हो और यू कैन टेक इट एज ए इम्पैक्ट लोड. लेकिन अगर इम्पैक्ट लोड आप मानते हैं, इट विल बी बेटर, क्योंकि अगर आपने इम्पैक्ट लोड माना है, देन यू विल डू डिजाइन ऑफ दिस बार, अकॉर्डिंग टू द इम्पैक्ट लोड. तो आप इसका डाया जो होगा,
you will select more dia. So when you will select more dia means you will be more safe. Yes or no? Because due to impact load, stresses will be more. That we are going to see. Okay? तो यहां पर इतना नोट कर दिया हो तो आगे एक पॉइंट लिखो, आगे एक पॉइंट लिखो। That point is called impact और इंटेंसिटी फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर और इंटेंसिटी फैक्टर। ओके, तो उसको अपन यहां पे डिफाइन कर देते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर IF, इसका ये एम्पेरिकल रिलेशन है, इसका कोई फॉर्मूला मतलब डेरिवेशन नहीं है, ये डायरेक्ट अपने पास एम्पेरिकल रिलेशन है, ये प्रैक्टिकली फाइंड किया जाएगा। सो इट विल बी गिवन बाय 1 प्लस 2h बाई डेल्टा स्टैटिक, 2h बाई डेल्टा स्टैटिक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर, अब ये इम्पैक्ट फैक्टर का यूज क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर का यूज क्या है, तो वो देखो यहां पर। एज वी नो जनरली the stresses in impact load will be more than the stresses in gradually applied load. Stresses due to gradually applied load. Okay, or gradually applied load is also called static load. Yes or no? Gradually applied load is static load, है ना? Now here the impact stresses will be equal to intensity factor into the static stress, into the static stress. ओके, तो ये इंटेंसिटी फैक्टर है, देखो इट विल बी ऑलवेज मोर देन 1, it will be always more than 1 because this h is what, this h is what, this h is your height from where the load will be dropped. ये h कौन सा होगा, the height from where load is dropped, so this will be always positive. Okay, now delta static, this delta is of static case, same bar when you will applied by gradually applied load or static load, then this delta static will be there. Okay, so here the impact factor will be always more than 1, the impact factor will be always more than 1. If impact factor is always more than 1 means impact stresses will be always more than static loading stresses. Yes or no? That's why impact stresses are, impact loading are more dangerous. Clear or not? अभी देखो इसमें बहुत मजेदार चीज अपन करने जा रहे हैं. Now for h very small, almost equal to 0, impact factor will be the minimum. Yes or no? Impact factor will have minimum value. Yes or no? So it will be 1 plus under root 1 plus 0. So it will be 2. Means impact factor का minimum value कितना है, 2. That means कि जो impact stresses है, impact stresses है, they will be always more than equal to 2 times of the static stress. बात समझ आया कि नहीं आया? अगर सेम स्टैटिक लोड आपने लगाया और स्ट्रेस 200 मेगापास्कल जा रहा है, सेम लोड से अगर इंपैक्ट करा दोगे तो वो मिनिमम 2 टाइम्स तो होगा ही, 300 का 600 मेगापास्कल, तो फेलियर का चांस लेस होगा या मोर होगा? बोलो बोलो बोलो, फेलियर का चांसेस विल बी लेस और मोर इन इंपैक्ट?
more. Simple सी बात, it is more. Very good. So here we are going to do analysis of it. We are going to do analysis of it. देखो बहुत मजेदार एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, बहुत मजेदार एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला आया है ये कहां से आया है? इट इज ए इंपेरिकल रिलेशन, तो इसका कोई डेरिवेशन एरिवेशन नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर करके फिर पता किया गया, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अभी देखो यहां पर you can see that here delta static is in denominator, delta static in denominator, okay. So if delta static will increase, the chances of failure will be increase or decrease? If delta static will increase, chances of failure will increase or decrease? बोलो बोलो बोलो। डिक्रीज, वेरी गुड। मतलब ज्यादा डिफॉर्मेशन है स्टैटिक के केस में, देन इफ यू विल इंक्रीज दिस, impact factor will decrease, so the impact stress will decrease, so the chances of failure will decrease। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब कोई बोलेगा सर इधर अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये टूट जाएगा। इफ static deflection will be more, then it will break down. It will break down, no issue, but we are not doing a study of it, we are doing a study for this। impact loading पढ़ रहे हैं। means where the chances of deflection is more, impact loading will be less harmful। For example, if this rod is made up of glass, if this rod is made up of glass, okay, delta static will be less, delta static will be less। So for the glass rod, if you will do impact loading, its chances of failure will be more। glass rod suddenly break हो जाता है impact से, by impact loading glass rod will break। But if it is made up of rubber, yes or no, delta static for same load will be more। So if delta static for same load will be more, then here chances of failure will be less, because it is made up of rubber। when you will hit this block here, इसका टूटने का चांस डिक्रीज कर जाएगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट? नो इस फॉर्मूला में ये डेल्टा स्टैटिक है इसका, ओके, डेल्टा स्टैटिक है इसका, इंपैक्ट फैक्टर है इसके लिए, बट डेल्टा स्टैटिक होता है इसका। वी विल कंपेयर, व्हाट द पॉइंट और नॉट? हाँ, तो क्यों कंपेयर कर रहे हैं बता तो रहा हूं, इट इज वेरी डीप। इनिशियली ऐसा लगता है इफ यू विल इंक्रीज द डेल्टा स्टैटिक इट विल ब्रेक डाउन, बट वी आर नॉट डूइंग स्टडी ऑफ इट, वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ इट। सो व्हेन इट विल बी मोर, लाइक इट इज मेड अप ऑफ रबर, like it is made up of rubber, then it will be more। so if it is made up of rubber, the same bar, rubber bar will not fail by impact loading। if it is made up of glass, for the same load it will be less, when it will be less, so when it will be in impact loading it will break down। बात समझ आई? very deep concept it is, okay। now second case, second case, if area, cross sectional area of the bar is increased,
then chances due to impact loading will increase or decrease. बोलो, if I am increasing the area, इसको मैं तगड़ा बना रहा हूं, if I am increasing the area, the chances of failure due to impact loading will increase or decrease. बोलो, if I am increasing the area, chances of failure will increase or decrease. हाँ, तो देखो कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? डेल्टा स्टैटिक किससे मिलता है? डेल्टा स्टैटिक फाइंड करना है. डेल्टा स्टैटिक यू कैन फाइंड बाय स्ट्रेन स्टैटिक विल बी इक्वल टू व्हाट? डेल्टा स्टैटिक अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ये सुनो, ऐसे होगा. एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट? स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू ई. स्ट्रेस इंटू ई. ये सुनो. सो इट विल बी गिवन बाय, स्ट्रेस को यू कैन राइट डाउन W by area. W by area. So here delta static you can write equal to what? WL by AE. कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने. E नीचे होगा, E will be here. So this L you can send here. Okay. So this will be the formula of delta static. Yes or no? WL by AE. WL by AE. Okay. So when area will be increased, delta static will actually decrease. When delta static will decrease, then this term will increase, then this will increase, then impact stress will increase. So chances of failure will be, bolo, chances of failure will be increase or decrease? समझ आया कुछ? Chances of failure will be more. Chances of failure will be more. Okay. Clear or not? हाँ, तो यहां पे लिखो, if I am writing here, if delta static will increase, delta static will increase, impact factor will decrease, then chances of failure will decrease. Yes or no? Clear. Second case, if area of the bar cross section will increase, so when area will increase, your delta static will decrease. Yes or no? Delta static will decrease, then intensity factor will increase. Intensity factor will increase, then इससे पहले एक चीज और लिख दो, चाहे इंटेंसिटी फैक्टर डाउन जाएगा तो सिग्मा इम्पैक्ट विल बी लेस, सो चांसेस ऑफ फेलियर विल बी लेस. यस और नो? क्लियर हुआ? मामला उल्टा पड़ गया? देखो, डेल्टा स्टैटिक फाइंड कर लेते हैं ना. डेल्टा स्टैटिक, डेल्टा स्टैटिक कितना है? ये फॉर्मूला तो क्लियर है ना? दिस फॉर्मूला इज क्लियर. मंगेश, दिस फॉर्मूला इज क्लियर और नॉट?
जिसको समझ आ रहा है उसको बहुत मज़ा आ रहा होगा। दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दे विल फील कि अरे ये क्या हो रहा है। ये फॉर्मूला क्लियर है ना? ठीक है। अब इस फॉर्मूले को देखो, मैंने कहा कि मैं एरिया को इंक्रीज कर रहा हूं। अगर मैं एरिया इंक्रीज कर रहा हूं बेटा, तो ज़रा बताओ इधर डेल्टा स्टैटिक क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा कि नहीं? बिकॉज एरिया कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। एरिया बढ़ाओगे डेल्टा स्टैटिक डिक्रीज करेगा। अरे इट इज ऑल्सो फॉर सिविल बेटा। सो व्हेन एरिया विल इंक्रीज डेल्टा स्टैटिक विल डिक्रीज, यस और नो? अभी डेल्टा स्टैटिक अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये डिनोमिनेटर में ये डिक्रीज करेगा, तो ये पूरा टर्म इंक्रीज करेगा, और ये पूरा टर्म इंक्रीज करेगा तो इम्पैक्ट फैक्टर विल इंक्रीज। हो जाएगा कि नहीं इंक्रीज? इम्पैक्ट फैक्टर विल इंक्रीज, एंड इम्पैक्ट फैक्टर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका ये इम्पैक्ट स्ट्रेस क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। ये सुनो, और इम्पैक्ट स्ट्रेस इंक्रीज हो गया तो जरा बताओ फेलियर का चांस इंक्रीज हो जाएगा ना? क्लियर हुई बात? एवरीवन क्लियर विद दिस? वेरी गुड। बात समझ आई? वेरी गुड। ये डायरेक्ट पूछते हैं। अभी देखो अगला, नेक्स्ट, इफ लेंथ ऑफ द मेंबर इंक्रीजेस तो क्या होगा? चांसेस ऑफ फेलियर विल इंक्रीज और डिक्रीज? बोलो। एरिया इंक्रीज का मतलब है आप उसको ज्यादा स्टिफ बना रहे हो। आप उसको ज्यादा स्टिफ बना रहे हो, और जो ज्यादा स्टिफ होता है, कहते हैं ना कि जो पेड़ में अकड़ ज्यादा होती है वो आंधी में गिर जाता है। इफ यू विल हैव ईगो स्टिक, यू आर वेरी स्टिक पर्सन, देन वन डे यू विल फॉल डाउन। बोले सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। सो एरिया इंक्रीजिंग मीन्स मोर स्टिफ। ओके, मोर स्टिफ चीज विल ब्रेक इन द इम्पैक्ट लोडिंग। if you are very stiff, when impact loading will come it will break down. But if you are loose, then if this member is loose, okay, then by impact loading it will bend, but it will not break. समझ में आ रहा है? हाँ। Now when you will increase the length, so length if you are increasing, length is here. Length increasing means delta static you are increasing, and when delta static increasing means chances of failure decreasing. समझे बात को? ये सोनू, ये सोनू, हाँ, आगे का कहानी यही हो जाएगा। ठीक है। अगली बात, अगर ए को इंक्रीज कर दे एंड एल को डिक्रीज कर दे, देन व्हाट विल हैपन? ए को इंक्रीज करे और एल को डिक्रीज करे, तब क्या होगा? चांसेस ऑफ फेलियर विल इंक्रीज और डिक्रीज? बोलो बोलो बोलो, बोलो बेटा बोलो। A increasing, L decreasing, A increasing, L decreasing. So for them your delta static will decrease. Delta static will decrease.
when delta static will decrease, this whole term will increase. If this whole term will increase, impact factor will increase. Impact factor will increase, so this impact stress will increase. Impact stress will increase, so chances of failure will be more. क्लियर हुई बात? हाँ, सब मैथमेटिक्स से आपको समझ में आ रहा है. तो सम टाइम्स मैथमेटिक्स इज टफ टू अंडरस्टैंड. वहां फिजिकल सिग्निफिकेंस से मैथ को सेटिस्फाई करते हैं. हेयर बाय द मैथमेटिक्स यू आर सेटिस्फाइंग द फिजिकल कंडीशन. एवरीवन क्लियर? ओके. So when A will increase, L will decrease, your delta static will actually decrease. And when delta static will decrease, which case? This case will be there. Yes or no? हाँ, इस पे पूछता है, ऐसे ही पूछता है, जैसे मैं पूछ रहा हूं वैसे ही पूछता है. कई बार पूछा गया ये. ठीक है. अभी अभी अगर आपको बोल दे कि इफ ए भी इंक्रीज किया और एल भी इंक्रीज किया, तब क्या होगा? तब देन वी कैन नॉट से डेल्टा स्टैटिक विल इंक्रीज और डिक्रीज. तो हम नहीं जानते कि वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज. तब रेशियो पे डिपेंड करेगा, है ना. ए ज्यादा बड़ा है या एल ज्यादा बड़ा है, वी कैन नॉट से. तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? वी कैन नॉट से. इन दिस केस वी कैन नॉट से. बात समझ आई कि नहीं आई? सो इन दिस केस वी कैन नॉट से. Okay, so here actually you will see everything by this formula. Yes or no? So this formula is important for you. If you will increase the load increase करोगे, डेल्टा एस. लोड तो एक अलग चीज हो गई. एरिया एल और ई ये आप बार के लिए चेंज कर सकते हो ना. फॉर सेम लोड वी आर टॉकिंग अबाउट सेम लोड. दोनों कंडीशन में सेम लोड लगाना है. ओनली देन वी कैन कंपेयर. ठीक है. एरिया एल और ई ये बार के लिए है. दीज यू कैन चेंज. ओके. लोड तो कितना ज्यादा लगा दो, फिर तो कुछ भी हो टूट जाएगा. स्टैटिक में ही तोड़ देंगे हम. इंपैक्ट करने की नीड ही नहीं है. इफ लोड यू वांट टू इंक्रीज, देन इट कैन ऑल्सो ब्रेक बाई सिंपल स्टैटिक लोड. नो नीड ऑफ इंपैक्ट लोडिंग. क्लियर और नॉट? सो एक्चुअली आपको यहां से चेक करना है. हाँ, वेरी गुड. तो सभी को क्लियर हो गई ये चीज? वेरी गुड. अगला देखो और पूछा गया है. इफ ई विल इंक्रीज, फिर क्या होगा बोलो? अगर ई को इंक्रीज कर दें, चांसेस ऑफ फेलियर क्या होगा? ई इंक्रीज करोगे, आपका डेल्टा स्टैटिक क्या हो रहा है? डिक्रीज कर जाएगा. देन डेल्टा स्टैटिक विल डिक्रीज. और जैसे ही डेल्टा स्टैटिक डिक्रीज किया, दिस विल बी द केस. क्लियर? दिस विल बी द केस. Okay, so ultimately you have to check what? Ultimately, hence finally, if your ratio W को हटा दो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम लोड. इन क्वेश्चन दे विल आस्क यू फॉर सेम लोड. सो फॉर सेम लोड इफ रेशियो कितना था? WL by AE.
इफ रेशियो L बाई AE ये बचा, increases means delta static increases means chances of failure decreases. Okay, and if this ratio L by AE will decrease, delta static will decrease, chances of failure will be more. क्लियर हो गई बात? तो ये अपना समरी हो गया इसका। इस पे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मैनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे विल आस्क। ओके, सभी को क्लियर हुआ यहां तक? बोलो बोलो बोलो, एवरीवन क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड।